محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے 98,400 سم تھنگ ووٹ حاصل کیے اور میاں نواز شریف نے 78,800 کچھ ووٹ حاصل کیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی 20,800 ووٹوں سے یاسمین راشد جیت رہی تھیں، جبکہ صرف 42 پولنگ اسٹیشن باقی رہ گئے ہوئے تھے، اور وہ 42 کے جو رہ گئے تھے وہ راتوں رات اس وقت انہوں نے راتوں رات ایک جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس کو تبدیل کیا، پولنگ ایجنٹ جو تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا اس کو کمرے سے باہر نکالا، پھینکا اس کو، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نیا رزلٹ تیار کیا، اور نئے رزلٹ کے مطابق وہ جو 42 پولنگ اسٹیشن باقی تھے ان میں دکھایا گیا کہ میاں نواز شریف کو 1,07,777 ووٹ ملے، جو 334 پولنگ اسٹیشن میں جن کو ووٹ جو ہیں وہ 78,000 ملے تھے، 42 پولنگ اسٹیشن میں ان کو ووٹ دکھائے گئے 1,07,777 ووٹ، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جنہوں نے 99,000 ووٹ حاصل کیے تھے لیکن 42 پولنگ اسٹیشن جو باقی بچے تھے 7 ہوتا ہے اور ایک فارم 49 ہوتا ہے، سیکشن 95 کے تحت جو ہے وہ فارم 49 جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، نوٹس دیے جاتے ہیں کینڈیڈیٹس کو، کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، اور وہ فارم جو 49 بنتا ہے اس میں پوسٹل ووٹس بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی وجہ سے، کیونکہ یہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کی طرف سے تھی، اور عمران خان جس کے بانی چیئرمین، لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں پوسٹل ووٹ جو ہیں وہ ان کے نام پہ بھیجے تھے، لیکن فارم 49 میں ایک بھی پوسٹل ووٹ جو ہے شامل نہیں کیا گیا، یہ صرف دکھانے کے لیے کہ میاں نواز شریف کو جتانا ہے انہوں نے۔ عدالت نے یہ نوٹس لیا، اور ایک اور بہت بڑی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں جس کا آج کمیشن نے بہت بڑا نوٹس لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کو ہم غور سے دیکھ کے ہم باقاعدہ اس کے اوپر اپنا ایک آرڈر پاس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اس جو این ایچ 130 جو کانسٹیچوئنسی ہے نیشنل اسمبلی کی، کانسٹیچوئنسی 173 اور 174 اور 170 کے صرف 14 پولنگ اسٹیشن اس میں شامل ہیں۔ جتنے ووٹ ان پروونشل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی کے ہونے چاہیے تھے سب کے ملا کے اتنے ہی ووٹ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی 130 کی کانسٹیچوئنسی میں ووٹ پڑنے چاہیے تھے، لیکن جب دونوں کو گنا گیا تو دونوں میں 72,000 ووٹ کا فرق ہے، اور وہ ووٹ نہیں پتہ لگا کہ وہ کہاں سے آیا۔ تو اس سے چیز یہ اتنی واضح طریقے سے آج ثابت ہو گئی کہ میاں نواز شریف جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اس ملک کے، اور کرپشن کے چارج تو الگ لگے اور پراپرٹی آج بھی ان کی اربوں کی موجود ہے، لیکن اتنا چھوٹا اور اتنی گری ہوئی حرکت جس میں اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ اگر آپ ہار گئے ہیں تو خدا کے لیے جھوٹا ووٹ تو نہ اٹھاؤ۔ انہوں نے جھوٹا ووٹ اٹھا لیا اور آج ثابت ہو گئے کہ وہ یہ سارا ووٹ جو ہے یہ ایک باقاعدہ پلان کے تحت ایجنٹ کو نکال کے اور آر او کو بدل کے یہ سارا کیا گیا ہے۔ یہ دھاندلی صرف ایک ہم کانسٹیچوئنسی کی بات کر رہے ہیں، پورے ملک میں یہی دھاندلی ہے، ہر کانسٹیچوئنسی ہر دوسری کانسٹیچوئنسی میں آپ کو نظر آئے گی، اور اسی طرح سے جو حکومت بنی ہے یہ حکومت
इलेक्टेड हुकूमत नहीं कह सकते आप इसको। इस हुकूमत को नुमाइंदा हुकूमत भी नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान का आइन तो ये कहता है कि sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives। तो गलत ओथ लेने पर इन तमाम के तमाम आज नहीं तो कल आर्टिकल 62, 63 के तहत कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। और जो लोग बाहर से शामिल होकर जिनकी इमा पे ये सारा काम किया गया है, जिनकी इमा पे रात के 10 बजे और 11 बजे और 12 बजे तक अदालतें बैठ के काम करती रही हैं इमरान खान को सजा देने के लिए, उन्होंने भी अपने ओथ की वायलेशन की है। और वो वक्त करीब है कि जब कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा और आइन की वायलेशन की सजा से कोई भी बच नहीं सकेगा, और इंशाअल्लाह फैसला भी एक संग मील होगा। मैं जी बैरिस्टर आज NA 126 में मलिक तोकीरबाज साहब खोखर जी की कोर्ट से पेश हुआ, जिसमें हमारे ओपोनेंट कैंडिडेट लाहौर के प्रेसिडेंट जो नून लीग के जिताया गया है मलिक सैफुल खलूक खोखर साहब, उनकी उस हल्के में हम पेश होकर आ रहे हैं। और उसमें भी आज जो पिटीशन में हम लोग बात करते रहे हैं और हमने बताया कोर्ट को कि तोकीर साहब के साथ कितनी ज्यादती हुई, और वहां पर फॉर्म 45 जारी हमारे हक में हो गया, फॉर्म 47 रातों रात जो किया गया उसके एक और रेलेवेंस है। मैं उस हल्के में इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे खान साहब ने टिकट जारी नहीं किया, लेकिन मैं खुद उस हल्के का चश्मदीद गवाह हूं, क्योंकि मेरे वहां नॉमिनेशन पेपर्स थे और मैंने कोर्ट को बताया वहां पर जाके कि मैं वहां पर उस पूरे हल्के को रात को सारी रात मॉनिटर करता रहा हूं, और वहां पर जाकर मैंने सब कुछ देखा है। मेरी आंखों के सामने आरओ दफ्तर में जो सारा कुछ हुआ है वो सारा कुछ मेरी नजर के सामने है। और मैंने कोर्ट को जब बताया ये सब चीजें, कोर्ट वाज एस्टोनिश, और उन्हें ये भी बताता चलूं कि कोर्ट ने इस बात को भी बड़ा सराहा कि मैं वो कैंडिडेट हूं जिसने वोट भी अपने हल्के में उस कैंडिडेट को डाल दिया, और मेरा वालदा का वोट, मेरी फैमिली का वोट, मैं उस 30 साल से उस हल्के में रह रहा हूं। वो सारा कुछ करते हुए मैंने आज जो है, मुझे पिटीशन में जब बेंच ने कहा कि आप इतना जज्बाती क्यों होते हैं, आप 6 दिन से देख रहे हैं, आप हर केस में पेश होते हैं, 25-30 अपील्स में आप आ चुके हैं, रोज आप आते हैं हमारे पास और रोज ही एक बात करते हैं कि खान साहब के साथ ज्यादती होगी। मैंने कहा जी मैं बिलीव करता हूं, मैंने इस पार्टी के लिए जो मैंने अभी खदमात, मेरी इस तरह और भी लोगों की खदमात है, मैंने 1 रुपया चार्ज नहीं किया इन पिटीशंस में, मैंने किसी से किसी किस्म का रुपया चार्ज नहीं किया। मैं सिर्फ खान साहब की मोहब्बत के लिए, क्योंकि खान साहब के साथ ज्यादती हो चुकी है, और इस पिटीशन में और बाकी सब पिटीशन में पूरी जो सबसे ज्यादा पिटीशन इस वक्त, अगर ये झूठ ना होगा कि अगर वन ऑफ द ज्यादा पिटीशन किसी तरफ से किसी वकील ने किया पीटीआई की तरफ से, तो शायद वो मैं हूँ, और भी साथ हमारे दोस्त बड़े सारे हमारी लीगल टीम वो कर रही हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन गई है इस सारी चीजें देख के। फॉर्म 45 जो सारे मैंने देखे हैं सब कैंडिडेट्स के, उसमें सब एक ही चीज आया है कि फॉर्म 45 जो है उसमें हम जीत गए हैं, और फॉर्म 47 में जो 9 तारीख को नतीजा आया है वो बिल्कुल डिफरेंट है 948 का। तो बाकी जहां तक रही जो हमारी सियासत, आज जो इजलास होने जा रहा है, आज जो कौमी असम्बली में, मैं कल भी उधर परसों पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में वहां पे मैं अपनी लीडरशिप के साथ था, वहां पे मैंने इन लोगों के चेहरे उतरते हुए देखे हैं। ये लोग जीत के भी हारे हुए हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज में मैं देख रहा था, मैं आई विटनेस हूं वहां पे इजलास का, कि ये शहबाज शरीफ साहब, अपना जरदारी साहब, इन सब का वहां पर बॉडी इनकी इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि ये हारे में ज़हनी तौर पे ऑन, मैं उस हल्के का सलमान राजा साहब के भी मैं चश्मदीद गवाह हूं ना, जिस रात को वहां पर अंदर जब वो हमला होता है मैं और सलमान राजा साहब अंदर बंद थे, तो उस केस में भी मैंने देखा ऑन साहब कैसे जीते हैं, और बाकी सब इन 126 में वहां का चश्मदीद गवाह हूं, मैं वहां पर भी रात को था। तो ये सारा कुछ जो हो चुका है, मेरी इलेक्शन कमीशन से भी दरखास्त है और आप अदलिया से और हमारे मुख्तलिफ हल्कों से कि प्लीज ये कोहिजन का कॉन्सेप्ट है, हम सब मिलकर चलते हैं, मिलकर मुल्क की खिदमत करते हैं, और पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हम जो है इस हमारा जो जाली मैंडेट है इसको हम वापस करें, खान साहब को रिहा करें, शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा करें, परवेज दलाई साहब को रिहा करें, यास्मीन जाशी साहब को रिहा करें, हमारी लीडरशिप को रिहा करें, और खान साहब की जगह जो है हम सब दोस्तों की, इन सब हमारी की पार्लियामेंट में इनको वापस आएं, और इन हाउस इंशाल्लाह चेंज आएगी जल्दी। ये सियासी हुकूमत ऐसे नहीं चल सकती।